أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum dear students. This is class 10th and our subject is general science. It is today 9th of July 2020. Today we are going to study an important topic so far as our chemistry portion is concerned. It is organic compounds. Organic compounds क्या होते हैं? Generally we say the compounds of carbon are organic compounds. Generally हम कहते हैं compounds of carbon are called as organic compounds. Generally, the compounds of carbon are called as organic compounds. Apart from carbon, these organic compounds also sometimes contain hydrogen. They sometimes also contain oxygen and other elements. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहा जाता है, यहाँ पे मैं आपको इसकी मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे. जनरली कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अपार्ट फ्रॉम कार्बन these organic compounds also contain hydrogen and they also contain sometimes oxygen and other elements. So most of the organic compounds are hydrocarbons. Most of the organic compounds are hydrocarbons. Most of them here indicates organic compounds. Most of the organic compounds are hydrocarbons. Means ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन होता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन and their derivatives, hydrocarbons and their derivatives. Most of the organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. For example, if we take here, we are having certain examples. For example, we are having an organic compound. It is CH4, simplest organic compound, simplest hydrocarbon. This is methane. We are having C2H6. This is ethane. We are having C3H8. It is propane. Similarly, we have C2H4. C2H4. This is ethene. Similarly, we have C2H2. This is ethine. Similarly, we have CHCl3. This is trichloromethane. इसमें 3 क्लोरीन है, trichloromethane. Similarly, we have C2H5OH. This is ethanol, NOL, ethanol. Similarly, we may have CH3CHO. This is ethanol, NAL. This is ethanol, ETHANOL. This is alcoholic group. And this is aldehyde group. This is ETHNAL, ethanol. ETHANAL, ethanol. तो जब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ देखते हैं तो वी सी दीज आर entirely composed of hydrogen and carbon, and sometimes they may contain oxygen and sometimes they may contain other elements like chlorine, etc. These organic compounds, they usually have low melting points and boiling points. कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें, मीथेन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लिखें, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -182 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -161 डिग्री सेंटीग्रेड. इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. When this low melting and boiling point indicates that
The force of attraction between their molecules is not very strong. Low melting and boiling point indicates low MP and BP. Melting point and boiling point indicates that the force of low melting and boiling point indicates that the force of attraction between their molecule is not very strong. ये जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये हमें दिखाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रांग. और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे स्ट्रांग नहीं है, दिस शोज दैट दे आर कोवलेंट इन नेचर. यहाँ पे आप याद रखेंगे इनका जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है तो हम कहेंगे दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स. बॉन्डिंग इन देम इज कोवलेंट. इनके अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवलेंट इन नेचर. और इस लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि दे आर कोवलेंट इन नेचर. दूसरी बात यह है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ. इनके दरमियान इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे भी हमें एक प्लस पॉइंट ये बना इनका कोवलेंट नेचर जानने के लिए. व्हेन दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस आल्सो इंडिकेट्स दे आर कोवलेंट इन नेचर. यानी कि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. दे डू नॉट कंटेन आयन्स. हाँ, if a compound is covalent in nature, it is not good conductor of electricity because it do not contain ions. इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे पास हो जाती है, उन्हीं कंपाउंड्स के बीच में से पास हो जाती है, विच आर आयोनिक कंपाउंड्स. वह द बॉन्ड्स आर आयोनिक बॉन्ड्स, जहाँ पर फ्री आयन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो ये जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इंडिकेट्स दैट दे आर कोवलेंट इन नेचर. दे डू नॉट कंटेन आयन्स. उनके अंदर आयन्स नहीं होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये तमाम जानदार जितने भी हैं उनके बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं. दे occur in the bodies of all living plants and animals. जितने भी जानदार हैं, जानदारों के जिस्म के अंदर ये ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. एवन की हमारी जो बॉडी है दिस इज आल्सो एवन कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, बाकी चीज़ें हैं. तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है. तो हम ऐसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है तमाम जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं. और पहले क्या समझा जाता था, इनिशियली ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were extracted from natural materials obtained from living things. पहले कि जो जानदारों के जिस्म से जो कुछ भी चीज़ें हमें मिलती थी उन्हीं से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते थे. Initially these organic compounds were actually obtained from those materials which were obtained from the bodies of living organisms. ये आप याद रखेंगे कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से लाते थे, कहाँ से हासिल करते थे. जो जानदार होते थे, इन जानदारों के जिस्म से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स से हम फिर डिराइव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते थे. और इट वाज बिलीव्ड दैट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली ओकर इन द bodies of living organisms and they cannot be prepared in the laboratory. And it was thought that a force which is responsible for the creation of living organisms, ये कहा जाता था कि force है which is responsible for the
creation of living organisms. That very force is responsible for the preparation of these organic compounds. A force known as vital force, वाइटल या विटल पीढ़ी आप एक फोर्स है जिसको कहा जाता था विटल फोर्स, वाइटल फोर्स विच इज responsible for creation of living things is necessary for the preparation of these compounds. हाँ, एक कहा जाता था कि एक फोर्स है जिसका नाम है विटल फोर्स या वाइटल फोर्स. दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and this force is responsible for the preparation of these organic compounds, and this theory was known as vital force theory. इस थ्योरी को विटल या वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है खाली जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं. जानदार जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हीं के बॉडीज़ में ये पाया जाता है. इसको हम आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते हैं. जानदारों के जिस्म से कुछ चीज़ें निकलती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उन्हीं से फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालते हैं. और ये कहा जाता था कि इनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते थे. और ये कहा जाता था कि एक फोर्स है जिसका नाम है वाइटल फोर्स. दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, एंड दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इस थ्योरी को कहा जाता था विटल फोर्स थ्योरी. बट दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट नोन एज, जिसको हम कहते हैं फ्रेडरिच वोल्हर इन 1828. फ्रेडरिच वोल्हर एक साइंटिस्ट है. इसने 1828 में इस विटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव किया. कैसे इसने डिस्प्रूव किया? इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं यूरिया कहते हैं. दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CONH2. दिस इज यूरिया. यूरिया जो है दिस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस फ्रेडरिच वोल्हर इट प्रिपेयर्ड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक. इसने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया. एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम an inorganic compound known as ammonium cyanate. जिस एमोनियम साइनेट की केमिकल फॉर्मूला है NH4CNO. ये एमोनियम साइनेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वोल्हर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में जिसका नाम है यूरिया. तो जब वोल्हर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट से यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो जो विटल फोर्स थ्योरी थी जो कहती थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली लिविंग बॉडीज में बनते हैं, इनको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं. तो वोल्हर की इस काम ने इनकी इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया. सो दिस विटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड व्हेन फ्रेडरिच वोल्हर prepared an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate in the laboratory. यहाँ पे एक बात हमें ज़हन में रखनी होगी कि कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन कार्बन जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है. लाइक कार्बन मोनोक्साइड, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक कार्बोनेट्स,
like hydrogen carbonates, etc. Oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbonates, carbides. These are the inorganic compounds which are composed of carbon with other elements. तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है. तो वो केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं. और वो केमिस्ट्री जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है उसको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. डील्स विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यहाँ पे मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कभी कभार हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, अदर एलिमेंट्स भी होते हैं. मोस्ट ऑफ देम जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं. और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब हमें यहाँ पे ये समझ आता है कि इनके जो अंदर जो दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, सो दे आर कोवेलेंट इन नेचर. ये जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट दे आर कोवेलेंट इन नेचर. दे डू नॉट पोजेस आयन्स. और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा दे ओकर इन ऑल लिविंग बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और पहले ये कहा जाता था कि दे ओनली ओकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ए फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस फोर्स is necessary for the preparation of these organic compounds. This is known as vital force, and this theory is known as vital force theory. But this vital force theory was disproved by a scientist, Friedrich Wöhler, in 1828, who prepared an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. और हमें यहाँ पे ये भी मालूम है कि याद रहना चाहिए कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, कार्बाइड्स है, कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है. तो वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री कहा जाता है. और जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. थैंक यू.